Good morning, students. In previous class, I have given the formulae of integration. Today, I will be explaining some of the examples and how to apply the limit. Okay, how to apply the limits for integration also. Suppose example 1, integral x over dx, limits are 2 to 5. Limits given 2 to 5. Limits are given 2 to 5. Integral x over 4 dx. First, we will be finding what is the value of integral x over 4 dx. Basic formula is integral x over 4 dx, x over n dx. X over n dx is equal to x over n plus 1 on n plus 1. This is the formula what I gave. Okay, suppose if it is in the form of the x power n, if it is in the form of the x power n, for that formula is x power n plus 1 upon n plus 1. Here it is given x power 4, integral x power 4 dx. Now what is the n value? N is 4. N is 4 means if you are applying this formula, n plus 1, 4 plus 1 upon n plus 1 is 4 plus 1. That is x power 5 upon 5. This is the integration value. So integration value is x power 5 upon 5. But we have to apply the limits also. What are the limits there? Limits is given 2 to 5. 2 to 5. So this is the upper limit and this is the lower limit. First what हम use करना पड़ेगा upper limit. What is the upper limit here? 5. 5 कहाँ replace करना पड़ेगा? X की जगह. We have to replace in place of x upper limit first. Okay. If we use the upper limit means x is equal to 5 for 5 upon 5. Clear? How to apply the limits means first हम क्या use करना पड़ेगा upper limit. Upper limit कहाँ use करना है? x की जगह में use किया था. ठीक. उसके बाद हम माइनस रखेंगे. Upper limit use करने के बाद माइनस. Then देखो lower limit use करेंगे. What is the lower limit? 2. अब ये 2 कहाँ use करना है? x की जगह में. अब x power 5 is 2 power 5. 2 power 5 upon 5. Then you can simplify and write it. ठीक है. So now what will be this answer? You can simplify and write it. There won't be any problem. Okay. So take one more example here. Thus given integral x square plus x, limits are given 0 to 1 or second are 0 to 2. Integration of x square plus x dx and limits are given 0 to 2. First we will be finding the integration. So here there are two terms are there, whether it is a integration or differentiation. Whether it is a integration or differentiation, if more than one terms are there, हर term के लिए you have to find out the integration or differentiation separately. Here there are two terms. So I have to take the integration for the first term separately and second term separately. So what is the first term here? X square dx. And what is the second term? X dx. X dx is the integration. Clear? Again same formula. What is the formula? Integral x power n dx is equal to x power n plus 1 upon n plus 1 we can add. Integral x power n dx is equal to x power n plus 1 upon n plus 1. Now integral x square dx is equal to what is the n value? N is 2. N is 2 means n plus 1. N plus 1 means 2 plus 1 3 upon 3. So x square के लिए आएगा x cube by 3. Limits are 0 to 2 plus अब integration of x. Integration of x means x power how much will be there? 1. Integration of x means x का power कितना होगा? 1 होगा. Now n value कितना? 1. n is 1 means n plus 1. n plus 1 is 2 plus 1. X square upon 2. So x square by 2. Limits are 0 to 2. What are the limits? Limits are 0 to 2. First इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, लिमिट्स रखेंगे और उसके बाद दोनों को अलग अलग लिमिट्स रखेंगे. क्या आंसर आएगा दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे. ठीक. अब पहले
अरे ये देगा x³ by 3 x³ by 3 का लिमिट्स प्लस करेंगे तो 0 to 2 पहला हम क्या रखना है अपर लिमिट कहाँ रखना है x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो x³ is 2³ by 3 ठीक है अपर लिमिट इसको करने के बाद हमें क्या बोलता माइनस रखना पड़ेगा अब लोअर लिमिट x की जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा 0 तो 0³ में से 0 by 3 अब जो 8 by 3 तो 0 by something 0 है दैट मींस पहला वैल्यू है 8 by 3 प्लस इसको मैं सिंपलीफाई करता एंड नेक्स्ट का वर्ड है x² by 2 को सिंपलीफाई कर लीजिएगा x² by 2 मींस x² by 2 so limits are 0 to 2 पहले अपर लिमिट रखेगा तो x की जगह 2 प्लस 2 स्क्वायर by 2 माइनस तो लोअर लिमिट 0 by 2 0 स्क्वायर मींस 0 by 2 दैट इज 4 by 2 2 minus 0 2 आएगा प्लस नाउ करेंगे एलसीएम करेगा तो एलसीएम करते हैं 3 आएगा हो जाएगा 8 2 6 14 by 3 है ना 8 by 3 plus 2 by 1 LCM is 3 ठीक है LCM is 3 so 3 1 is 3 and 1 into 8 8 plus इसको 1 3 is 3 3 into 2 6 8 plus 6 14 by 3 ठीक so this Mr. Today I explained how to use the limits इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स की कुछ हम लिमिट्स भी यूज करना है ठीक है अब लिमिट्स कैसे यूज करेंगे पहले हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे पहले अपर लिमिट यूज करेंगे उसके बाद माइनस देन लोअर लिमिट विल बी सिंपलीफाइंग दैट्स इट ठीक सो दिस इज हाउ टू अप्लाई द लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशन now listen integration of sin 2x plus 3 dx integration of sin 2x plus 3 dx ठीक है अब इंटीग्रेशन ऑफ sin minus cos also becoming minus cos will become ना so now we can write integration of sin 2x plus 3 integration of sin x is equal to minus cos x you can see don't get confused derivative of sin x is the cos x but integration of sin x is equal to minus cos x it is clear now sin of 2x plus 3 dx function is sin अब sin का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा माइनस cos माइनस cos here x की जगह what is there 2x plus 3 in place of x what is there 2x plus 3 ठीक है अब 2x plus 3 होगा तो पहले 2x plus 3 ऐसे लिखेंगे उसके बाद हम देखना पड़ेगा what is the coefficient of x है 2 ये 2 कहाँ आएगा नीचे आएगा 2 कहाँ आएगा नीचे आएगा डिफरेंशिएशन में होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा कोएफिशिएंट एंड इंटीग्रेशन में होगा तो डिवीजन में आएगा क्लियर दिस फॉर इंटीग्रेशन सपोज सेम क्वेश्चन के लिए क्या करें डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ sin 2x plus 3 ठीक है हम डिफरेंशिएशन में हमने बोला था दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए बिना डिफरेंशिएशन भी आप लिख सकते हैं आप देख सकते हैं dy dx of sin के लिए क्या है dy dx of sin is equal to cos x means क्या आएगा 2x plus 3 आएगा लेकिन ये x नहीं हो तो हमने क्या बोलता हम लोगों को इसको लिए अब क्या करना पड़ेगा दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देख लीजिएगा 2x plus 3 दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 2 आएगा ठीक है अब ऐसे करेंगे नहीं तो अब सीधा भी लिख सकते हैं फर्स्ट 2x plus 3 लिखा उसके बाद व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 2 कोएफिशिएंट ऑफ x is 2 अब ये 2 कहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे डिफरेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इंटीग्रेशन में होगा तो डिवीजन में लिखेंगे वाला देयर इज डिफरेंस गॉट माय पॉइंट सीधा sin x होगा तो क्या लिखेंगे cos x हम देखेंगे dy dx of sin x क्या लिखना
डिवाइडेड ऑफ sin x इक्वल टू cos x ठीक x होगा, लेकिन x में x के साथ कुछ और वैल्यूज भी ठीक। इसी केस में क्या करना है, हम आप लोगों को अलग मैंने बताया था क्या करेंगे, पहले sin को लिखेंगे cos, उसके बाद x की जगह में व्हाट इज गिवन है 2x + 3, इसी 2x + 3 को आप दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम ऐसे बात दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो फिर भी 2 आएगा, नहीं तो सीधा भी ले सकते। हमने पहले आप लोगों को हम ऐसे बताया था sin का डिफरेंशिएशन कितना है cos 2x + 3, ये तो x नहीं, अब इसको क्लोज कर दिया, इसको दोबारा हमने क्या बोला था डिफरेंशिएशन करो 2x + 3। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा 2 ये आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 आएगा, ओके। दैट मींस 2 मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर डिफरेंशिएट हो तो 2 आएगा, 2 कहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं करेगा, सेम हो सकता है 2 आएगा, 2 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई cos 2x + 3 आप लिख सकते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करेगा, दोबारा डिफरेंशिएशन भी कर लेना, नहीं तो अब क्या हम क्या पढ़ रहे हैं दूसरा मेथड। और दूसरा मेथड में पहले डिवाइडेड ऑफ sin फंक्शन क्या आएगा cos आएगा, cos 2x + 3 क्या है cos 2x + 3 एंड व्हाट इज द x कोएफिशिएंट 2, कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 2। अब ये 2 को कहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, कहानी खत्म, ठीक। अब इंटीग्रेशन होगा तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होगा, सीधा लेंगे -cos x, लेकिन x के साथ कुछ और वैल्यू से अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin के लिए sin को करेगा तो -cos है, -cos लिखा, -cos उसके बाद 2x + 3 भी लिखा था, ठीक है। अब व्हाट इज x कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, अब 2 को कहां लेंगे, डिवीजन में लिखेंगे, ठीक। एंड इंटीग्रेशन के बाद अब इंटीग्रल कांस्टेंट भी लिखना है। वो यू ऑलरेडी इंटीग्रल कांस्टेंट में से एक्सप्लेन इन प्रीवियस क्लास, सो जस्ट रिवाइज वन टाइम। सो इन प्रीवियस क्लास में हम एक्सप्लेन किया था हर इंटीग्रेशन के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम लिख रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं आप लोगों को बता दिया, अब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो आज का क्लास इतना ही, अब देख लो बेसिक मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट हाँ कंप्लीटेड, तो कैसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। मेनली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको ज़रूरत पड़ेगा, बाकी भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ज़रूरत पड़ेगा, एंड बाकी बाइनोमियल और कुछ और दिया था, ओके, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वही मीन्स दीज आर द यूजफुल थिंग्स, these are the basic things. Without basics you can't do anything, okay. So one more time I'm saying same thing, without basics you can't do anything. If any competitive examination आप जाएगा तो physics मतलब ये they don't give the theory questions, there may be 1 or 2 theory questions remaining only numericals। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहे तो ये सब कुछ आप लोग आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कुछ फॉर्मूला भी आपको बुक में दिया, ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्लास onwards we will start the regular syllabus, okay, thank you।